थैंक यू सो मच। तो हम लोगों ने ये इस तरह की सीरीज शुरू की है जिसमें हम एमएसएमईज को कोशिश करेंगे कि जब तक हम कांटेक्ट क्लासेस में नहीं आ पाते तब तक हम वर्चुअली एक दूसरे से एंगेज होते रहे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते रहे। अब उसमें हम लोगों ने लास्ट वीक मिस्टर अनिल से जैसे बात हो रही थी, तो अनिल जी ने एक आइडिया रखा कि हमने ऑपरेशंस में कुछ बहुत अच्छा वो किया है, अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसा। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक सेशन ओपन डिस्कशन का रखें जहाँ पे वी जस्ट सिट टुगेदर, वी टॉक विद ईच अदर। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा जीरो एजेंडा, बट ओपन एजेंडा, है ना, कि जैसे मान लीजिए आपकी जो बिजनेसेस हैं उसमें आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सके कि देखिए इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे ओवरकम किया, है ना। तो उसमें फिर हमने ये व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया, देन उसमें हमने ये प्रपोजल भी रखे। तो आज जो ओपन डिस्कशन फोरम है वो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें जो ओरिजिनल स्पीकर थे मिस्टर पटेल, उनके वहाँ कल बारिश बहुत हुई, तो वो कह रहे थे कि इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, बिकॉज ही इज फ्रॉम विसनगर, अ वेरी रिमोट प्लेस इन गुजरात, सम 100 किलोमीटर्स अवे, मऊडी के पास। तो टुडे वी विल स्टार्ट, वी विल सी हाउ इट गोज, राइट। मिस्टर मेहुल हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून मिस्टर मेहुल। तो we will first start with a brief introduction, 1 or 2 lines, so that we all can know each other, and we can have an informal conversation. So starting with you, Mr. Chetan, जो मुझे दिखाई दे रहा है पहले स्क्रीन पे, हम वहां से शुरू करते हैं. Yeah, Mr. Chetan. Okay, sure. Yeah, see, basically I'm an engineer, and since 20 plus years we are into HR solutions, and since last 5 to 6 years we work in such a manner that the MSMEs and the MNCs, they can outsource all the HR activities or some part of the HR activities to us. In short, yeah. Okay, great. Mr. Anil Joshi. गुड आफ्टरनून, आई एम अनिल जोशी। मैं इंदौर से हूँ। मेरी कंपनी है विशाल फैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग कॉपर पार्ट्स बनाते हैं फॉर मेनली फॉर इलेक्ट्रिकल स्विच गेयर इंडस्ट्री। माय मेन कस्टमर्स आर स्नाइडर, एबीबी, सीमेंस, क्रॉम्पटन, all these switchgear manufacturing companies. Then last 2 years we have been associated with Tesla for their electric car. Actually, we are supplying some part to Tesla US, and we globally we are the only source for that particular copper part. So this is my brief introduction. I am looking after mainly plant operations. It's a family-run business. My elder brother is a managing director. He looks after mainly marketing, purchase. I am looking after HR, plant operation, quality, and maintenance. Great. Mr. Samir. Yes. My name is Samir Shah, and my company's name is Remik, R-E-M-I-K, Remik Group. We are into marketing of chemicals and dyes. Dyes primarily for the textile industry, and chemicals for various industries. Chemicals could be textile, paints, paper, cosmetics, agriculture, water treatment, adhesives, resins, various types of industries. So we buy from industry, we sell to industries. And we are spread out in 8 states, including Rajasthan, Bombay, then MP, Chhattisgarh, Calcutta, Hyderabad. Great. That's it. Great. Mr. Pranav Shah. Yeah. Hello, am I audible? Yes, you are. Yeah. Hello. Yes, you are. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, yeah. Actually, basically, I'm a chartered accountant. I'm a chartered accountant, but not into practice. We have Honda two-wheeler dealerships. We have one main dealership at CG Road and 6 branches in Ahmedabad. We are also having Yamaha dealership in Baroda and Vidyanagar. In addition to automobiles, we are also into food manufacturing. We are producing traditional Gujarati food, that is khakra, bhakri, and patra, dry patra, and mainly we are exporting. We are exporting to 13 countries. Great. Mr. Vaibhav. Yeah, good afternoon, everyone.
Okay, Mr. Mehul. Okay, yeah. Yes, Mr. Mehul. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Myself, Mehul, I'm into HR function. I'm heading a HR function in one German multinational company called Chrysler India. And I'm associated with Chrysler India since more than 9 years. And I'm having a total experience of in HR about 25 years. Great. Mr. Vaibhav. Hi, my name is Vaibhav Ujjain. I basically represent Virtus Energy Private Limited, which is a solar EPC company, and we are into this industry for almost last 10 years, and a total portfolio of 100 plus megawatt, including rooftop and ground mounted solutions. Great. Mr. Anand Patel. Yeah. Hi friends, I'm Anand here, and we are into rotogravure cylinder manufacturing. We manufacture rotogravure cylinders, NLOX rolls, embossing rolls for various industries, and we sell pan-India, plus we export to almost 15-16 countries. Great. Okay. So to begin with the agenda, let us first listen to Mr. Anil Joshi and the thing that he wanted to share. As we said, we will be sharing business and management practices, and later on we can expand these discussions to anything related to life. Maybe it may be professional, it may be any dimension of life we can cover. So Mr. Anil Joshi जी, लास्ट टाइम जो हमारी बात निकली थी SWOT एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हुए, तो आपने कहा था कि ऑपरेशंस की जब हमारी बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि हमने अपनी फैक्ट्री में एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है जिसकी वजह से हमें कुछ फायदा हो रहा है. अच्छा, अब यहाँ पर जैसे सब लोग वो नहीं है मैन्युफैक्चरर्स, बट बिलीव मी, आप मैन्युफैक्चरर हैं कि नहीं है, जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं ना, तो किसी ना किसी रूप में ये जो प्रोसेसेस हैं आपके इंडस्ट्री में भी इम्प्लीकेट करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसका इम्प्लीकेशन होता ही है ना. सो वी विल लिसन विद ओपन माइंड एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस प्रोसेस कैन हेल्प अस. सो ओवर टू यू मिस्टर अनिल जोशी. कितना 15 मिनट्स करीब, 10 से 15 मिनट हम 10 से 15 मिनट करेंगे, और बीच बीच में क्वेश्चन आप कैसा पसंद करते हैं, क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे जाए या एंड में? बिल्कुल बीच में इंटरेक्टिव रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा. तो हम एक काम करेंगे, जो चीज हमें समझ में नहीं आएगी हम उसी समय बोलकर, इशारे से नहीं, चैट से नहीं, बोलने से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कोई कुछ कहना चाह रहा है. ठीक है? राइट. Okay, चलिए. Yes sir, Mr. Anil Joshi, thank you for agreeing to contribute. Yeah sir, once again very good afternoon. और एक्चुअली जो हमारी बात हुई उस पर से क्या हुआ था, एक्चुअली हाउ इट बिगन. बेसिकली व्हाट हैपेंस, हमारे एक कंप्लेंट रहती है कि वर्कर ते काम करते नहीं है साहब. ये एक जनरल कंप्लेंट हमारे यहाँ भी चलती थी, जो बाहर चलती है. पर हम लोगों ने जब डिटेल, when we went into the depth of it, we saw that it is we who are at fault. Basically, there is no system to which enables a worker to give his best. Basically, best performance he is not able to deliver. So what happened? We talked about the waste management. Basically, in a way, the system, it eliminates the waste basically. Because what happened, जब वर्कर काम करता है तो what are the resources available? तो स्पेस है, मशीन है, टाइम है, मटेरियल है, मैन, मशीन, जो हमारे 4M आते हैं वो सब आ जाता है. और उसके अलावा जो है उसके पास उतना समय, 480 मिनट का समय है एक शिफ्ट का उसके पास. तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे बातचीत की, तो हमें पता चला कि हम अल्टीमेटली OE कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशिएंसी, कि हमारा एक इक्विपमेंट कितना काम कर रहा है. तो हम लोगों ने क्या, वी केम आउट विद अ फॉर्मेट, जो हम लोगों ने धीरे धीरे जब शुरू किया था, इट हैड वेरी डिफरेंट शेप. फिर धीरे धीरे इसका फाइन ट्यून हम लोग करते गए. तो मैं स्क्रीन शेयर करके वो फॉर्मेट शेयर करूंगा. तो हम लोगों ने क्या किया था कि OE का मतलब है कि ऑपरेटर इफिशिएंसी कितनी है, कि उसको जितना टाइम काम किया उसमें कितना होना चाहिए था, व्हाट ही शुड हैव प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट ही हैज प्रोड्यूस्ड, दैट इज हिज इफिशिएंसी. For example, 480 minutes are available, but for some reason machine is available for 300 minutes only. So operator should deliver his the output as per standard norms for 300 minutes.
but that is his responsibility. But our responsibility is to make the resource available to him and the best system which will produce zero defect quality. That is management responsibility. So we started calculating OE. So what is OE? The OE means operator efficiency multiplied by the quality he produced. Example, he has produced 100 numbers, out of which 95 are okay. So he will multiply by 95. And third is what percentage of time that machine was available, but it was when machine was available for, should be available for 480 minutes. But for some or the other reason, there are so many reasons. See, setup time is there, then quality check is there, then proper planning is not there because offline preparation is not made. Then everything is there, but machine is not in working condition, so maintenance comes into picture. So all such kind of things were there, because of which the machine uptime is not fully made available. The machine is not available for full time. So the multiplication of all these three is the OE, overall equipment efficiency. So we started measuring all these things. So now I will share this screen. Is it okay? Sure. Yeah, I have activated this sharing all. So first of all, if anybody would have any question, जो अभी तक उन्होंने कहा, क्या हम सब समझ पाए? Yes. वैभव जी, समीर, प्रणीत जी, समझ पाए ना? कोई जार्गन में कोई चीज मिस हो गई हो या? और अभी ये फॉर्मेट आएगा ना, तो उसमें और आपको क्लियर आइडिया आएगी कि हम लोगों ने कैसा किया था जी। जो फॉर्मेट में हम लोग, और ये पर्टिकुलरली दिस इज टू बी फील्ड बाय ऑपरेटर ओनली। ओके, फाइन। ये ऑपरेटर को ही करना है, उसको उन्हीं को ट्रेन किया, और इसीलिए हम लोगों ने इसको लोकल लैंग्वेज दैट इज इन हिंदी रखा है हम लोगों ने। ओके। तो ये पूरा फॉर्मेट को उसको ही भरना है कि उसने कितने बजे चालू किया। और अच्छा, सेकंडली द ब्यूटी इज कि यू हैव टू मॉनिटर इट एवरी आवर, बिकॉज फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम आता है तो आवरली मॉनिटरिंग से क्या होगा कि इमीडिएटली इट विल बी अटेंडेड। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ शिफ्ट की रिपोर्ट बनती थी, तो वो 3:30 7 से 3:30 का शिफ्ट था, तो एट 3:30 वी यूज्ड टू कम टू नो कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे को 9 बजे आया था पर मुझे कोई मिला नहीं, और सॉल्व होते होते 12 बज गए थे, तो 3 घंटे मशीन वाज अंडर मेंटेनेंस। अभी उसको प्रॉब्लम आया तो इमीडिएटली इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वहां डाउन टाइम बढ़ेगा, तो he will be answerable, he will be responsible, he will be accountable. Who, the operator or the supervisor? पहले ऑपरेटर सुपरवाइजर को बताएगा और सुपरवाइजर हैज टू कोऑर्डिनेट। पर ऑपरेटर का कहना है फॉर एनी रीजन इफ देयर इज एनी स्टॉपेज, तो ही इज सपोज्ड टू इन्फॉर्म हिज इमीडिएट बॉस, मींस दैट इज सुपरवाइजर। ओके। तो उससे फायदा ये हुआ कि हमारा टाइम बच गया। जैसे मैंने आज 7 बजे शिफ्ट चालू की और 9 बजे कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो 9 बजे इमीडिएट बताएगा, तो उसने सुपरवाइजर को बताया, तो अब सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ही शुड मेक इट ओके एंड मेक इट अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। तो उससे जो रिएक्शन हो गई वो फास्ट हो गई है उसमें। ओके। सो वन की मैसेज हियर इज कि प्रोएक्टिवली अगर मैनेजमेंट सारे रिसोर्सेज सप्लाई करता है, सारा प्लान क्लियर लैंग्वेज में लोगों के सामने रखता है, तो हमारा जो आउटपुट है लोगों से काम लेने का, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट? बढ़ जाती है। तो अब आप शेयर करेंगे कि आपने किस फॉर्मेट में वो प्लान रखा, आपने किस फॉर्मेट में उस कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन किया जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ी। एग्जैक्टली। फाइन। थैंक यू। ठीक है, तो सी इफ यू कैन शेयर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इनेबल्ड शेयरिंग। Yeah. Are you able to see it? Yes. हाँ, तो यदि मैं बात करूं तो एक तो ये कंपनी का नाम है, इसका नाम दिया हमने ऑपरेटर लोडिंग शीट, कि ऑपरेटर को हम लोग जो काम का लोडिंग दे रहे हैं। तो इसमें एक तो उनकी डेट आ गई है, डेट के बाद में ऑपरेटर का नाम, उसके बाद में कंपनी में जो आईडी उसका नंबर है, आइडेंटिटी नंबर, कौन सी शिफ्ट है, और रुकावट के कारण यानी स्टॉपेज, रीजन फॉर स्टॉपेज। ओके, तो ये हम लोगों ने मशीन का नाम आ गया, उसका नंबर आ गया, टूल नंबर, वॉट एवर डाइज टूल जिग फिक्चर ही इज यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उसका नंबर आ गया है। देन हम लोग पास में फॉर ट्रेसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी पर्पस, हम लोग का एक जॉब रूट कार्ड होता है, तो
तो वो प्लानिंग वाला जॉब रूट कार्ड बनाता है जब भी प्लान करता है वो। ओके दैट जॉब रूट कार्ड हैज गॉट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका कोडिफिकेशन है, वो डिटेल में अभी जाएंगे तो टाइम जाएगा। तो जॉब रूट कार्ड इट मूव्स विथ मटेरियल फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन इज द फर्स्ट ऑपरेशन टिल द पैकिंग। और पैकिंग के बाद इस जॉब रूट कार्ड पे इनवॉइस नंबर भी आ जाता है, ताकि इन केस इन फ्यूचर देयर इज एनी कंप्लेंट, so we are able to trace back which machine it was produced, which operator worked on it. So all these details we use to get through job root card through system. So this job root card is important for us. Okay. Okay, is it clear, sir? Yes. Then what is the part number and drawing number? Okay, so this is the blank format. I will be showing the form duly filled by the operator. Okay. तो इसमें जो आपने रुकावट के कारण लिखे हैं, हाँ, उसमें आपने क्या मेहनत की कि सारे कारणों को आप कैप्चर कर पाए? यस, मैं बताता हूँ, उस पे आने के बाद वो भी बताता हूँ। तो ये ऑपरेशन डिटेल आ गए, देन क्वांटिटी कितनी प्लान थी, और टारगेट, यहाँ टारगेट आ जाता है जो हम लोगों ने टाइम एंड मोशन स्टडी करके whatever targets we have set in 1 hour, how much it can be produced. ये टारगेट कौन फिक्स करता है सर? जी, टारगेट कौन तय करता है? नहीं, हमारे यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है ना, ऑपरेटर का काम नहीं है उसमें। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के थ्रू हमने स्टडी की है, हाँ, उसमें हम लोगों ने ये so you decide that this should be the target. Yes. Okay. This should be the target for that worker. He has to produce, for example, per hour, as per our standard time, it should be 100 pieces per hour. Right. तो यहाँ 100 लिखेंगे। अब सुबह 7 से 8 शिफ्ट होती है और सेकंड होती है 3:30 to 12। आपकी आवाज चली गई, आपकी वॉइस। हाँ, या एम आई ऑडिबल? कुछ लास्ट के 10-15 सेकंड आपकी वॉइस चली गई थी, तो हाँ, मुझे लगा वो। तो हम लोगों ने इसमें 2 शिफ्ट का डाल रखा है। यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो मैं इसको ये करता हूँ, या 1 मिनट थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं सर? हाँ, मैं लैपटॉप पर हूँ। हाँ हाँ, तो ये हम लोग हर 1 घंटे बाद उसको ओके क्वांटिटी और रिजेक्ट क्वांटिटी डालना है कि 100 का टारगेट था, ही हैज प्रोड्यूस्ड 98, रिजेक्ट 0, तो प्रोडक्शन 98 हुआ। या उसने 98 बनाए, 3 रिजेक्ट हो गए तो 3 लिखना है। तो एवरी आवर ही हैज टू राइट। अब इसमें क्या हुआ है कि 100 नहीं आ, इमीडिएटली ही हैज टू रिपोर्ट इट कि मेरा वो टारगेट आ नहीं रहा है। अब सवाल ये हो रहा है कि 100 का 99 हो गया तो जाएगा क्या? तो हमने कहा नहीं, तो 90 तक उसको इतना सीरियस अलर्ट मत देना है, यानी बताना है पर तेरे को काम नहीं रोकना है। पर यदि जैसे उससे ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, स्टॉप है, कई बार न्यूमेटिक मशीन रहती है, एयर प्रेशर नहीं आता है, तो उसको इमीडिएट काम रोक के अलर्ट देना है कि अब नो इमरजेंसी है, सब काम छोड़ के मेरी मशीन पे आप आ जाइए। ये एक हमने अलर्ट दिया, उसको बताया हुआ है कि एटलीस्ट 90% के ऊपर आउटपुट तेरा कंटिन्यू आना चाहिए, और तब तक तू बहुत ज्यादा उसको पैनिक ही नहीं होने का है। ओके, अब आ गए रुकावट के कारण, क्वालिटी हो गई, इफिशिएंसी आ गई उसकी कि 100 के अगेंस्ट कुछ बना रहा है। अब जो हमने पुराना हिस्ट्री देखी उसमें मेजर स्टॉपेज के थे, वो यहाँ लिए हम लोगों ने। तो सबसे पहले तो सेटअप टाइम, जब नया सेटअप लगता है तो सेटअप और चेंज ओवर टाइम उसको कितना लगा। ओके, सेकेंडली क्वालिटी चेकिंग, बिकॉज सिस्टम रहता है कि जब सेटअप के बाद पहले पीस चेक करना है, फर्स्ट 5 पीस आर टू बी चेक बाय द क्वालिटी कंट्रोल। तो वो खुद अच्छा क्वालिटी को भी he will offer to the quality control only after he is satisfied. So he has to check it, means he and supervisor has to check it, and once they are satisfied, they will offer it for final verification only. So quality check takes some time. May I interrupt here? Yeah, please. This is a process of quality control. This cannot be termed as interruptions. No, sir. This is not interruption. I am not saying any reason for which machine is stopped. It has stopped producing. See, why we have considered, I will tell you, if this time is consuming more than the stipulated time, so we need to develop some go-no-go, or we need to simplify the manufacturing process to minimize the checking time.
Okay, what I was asking was that each row will highlight the activities of one single hour, right? Yeah, sure. Yeah. Okay. So if, see, for example, as per my standard procedure, if 10 minutes should be required to check that lot, and if it's taking 30 minutes, so again that will give me alert, na, कि I need to look into it. Right. So thirdly, there are some tooling issues. That tool is not proper, so I am not getting desired quality. So again, एक टूलिंग का इशू आता है. उसके बाद मशीन ब्रेकडाउन की सभी ठीक है पर मशीन ही ब्रेकडाउन में है, तो फिर मेरा मेंटेनेंस में कहीं गड़बड़ है, मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, मेरा ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, क्योंकि हमने ऑटोनॉमस मेंटेनेंस भी एक हमारे यहाँ है, क्लीन शीट बोलते हैं उसको, वो एक अलग इशू है कि ऑपरेटर खुद चेक करता है इसको मशीन को, तो व्हाट ही शुड चेक, तो एक वो करेगा, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा, थर्डली प्लांट मेंटेनेंस होगा, और ये सब फेल हुआ तो हम लोग का आएगा फिर ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन मिनिमाइज करना है हमें. ओके. तो मशीन का ब्रेकडाउन आएगा तो इसका पैरेटो जब हम लोग बनाएंगे, तो यदि मशीन ब्रेकडाउन ज्यादा है तो हम लोग विल गो थ्रू आवर मेंटेनेंस रिकॉर्ड कि भाई क्या टाइमली हुआ नहीं, क्या मेंटेनेंस क्या हुआ. तो सेकंडली पावर नहीं, कहीं पावर फेल्यूर होता है. ओके. फैक्ट्री में पावर ही अवेलेबल नहीं है. Secondly, air not available. Certain machines, they are pneumatically run, pneumatically operated. तो pneumatic machine में कहीं compressor का problem है क्या, air pressure क्यों नहीं आ रहा है. Then सब है पर materially available नहीं. The production is planned, या उसको 1 घंटे का production है और timely material नहीं मिल रहा है, तो ये जो production control वाले की responsibility आ जाती है कि he has to keep the material available for that time, particularly for 8 hours he has to produce. तो particularly हम लोग 4-4 घंटे का मटेरियल अवेलेबल रखते हैं, तो वो हो नहीं पाया. सेकंडली सब कुछ है पर लोड नहीं है हमारे पास, प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, या हो सकता है उस दिन ऑपरेटर या ये नहीं है, व्हाट डू यू कॉल, हमारा ऑर्डर ही नहीं है, तो वो रिसोर्स कंटिन्यूअस खाली जा रहा है क्या, इसका मतलब हमें उस मशीन के लिए ऑर्डर लाने की जरूरत है. और इसके अलावा जो ये मेजर रीजन के अलावा कुछ बचता है तो अन्य इश्यूज. अब अन्य इश्यूज में हम लोगों के यहाँ जनरली आता है 2 टी ब्रेक होते हैं हम लोगों के यहाँ. ओके, बराबर. हेलो. तो वो सुबह का एक लंच के पहले का टी ब्रेक, लंच के बाद का टी ब्रेक, तो वो 10-10 मिनट, और उसके अलावा कोई छोटा रीजन हो, क्योंकि पैराटो करने के बाद हमारा तो ये 5-6 रीजन ही आया बेसिकली, तो उनको हमने यहाँ स्पेसिफिक दिया हुआ है. अब यहाँ वो मिनट लिखेगा और नीचे फिर टोटल होने के बाद कि मेरा इतना आया, और मंथ एंड पे या बीच में वो एनालिसिस करते रहता है कि फॉर विच रीजन द स्टॉपेज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉपेज इज मोर. तो अकॉर्डिंगली वी कैन हैव फोकस्ड अटेंशन टू रिजॉल्व दैट इशू. दैट इज द पर्पस बेसिकली. अच्छा, सेकंडली ऑपरेटर की इफिशिएंसी आ चुकी है. अब इससे फर्क ये पड़ा कि हम जो बार बार बोलते थे कि ऑपरेटर काम नहीं करते हैं, तो ये यदि रीजन एलिमिनेट कर दिया कि तो ऑपरेटर की इफिशिएंसी तो कम से कम 25-30% बढ़ गए अपने आप में, विदाउट उनको कुछ बताने के. क्योंकि उनको अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज एनी सेटिंग इशू कि सेटअप इज टेकिंग मोर टाइम, तो अब सुपरवाइजर और जो सेटर है वो लगा हुआ है, एक ऑपरेटर है उसका काम है ऑन ऑफ करना है, तो वो बोलता है मेरा कुछ काम नहीं, तो वो उठ के चला जाता है पड़ोस से बात करने, उसको डिस्टर्ब कर रहा है. अब मैंने सेटअप भी 5 मिनट में कर दिया है, तो इसके लिए हम लोगों ने स्मेड लगाया था, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, वो एक फिर अलग टॉपिक है. तो हमारे सेटअप टाइम पहले जो लगता था उसका 20%, 15% इसके आसपास आ गए हम लोग सेटअप में. तो वी हैव रिड्यूस सेटअप टाइम. क्वालिटी के लिए wherever possible we have provided them with the attribute gauges, go no go kind of gauges, कि ऑपरेटर ही गो नो गो करेगा, और एक घंटे से वहां शॉप में जो क्वालिटी सुपरवाइजर है, he will just verify what operator has checked. So every time he has not to go to the standard room, or he has not to use the linear height, 2D linear height, or CMM, all this kind of machines. All these simple go no go or attribute gauges have been made available. तो क्वालिटी चेकिंग का टाइम बहुत कम कर लिया हम लोगों ने. टूलिंग में हम लोगों ने डिजाइन में ही ऐसा काम कर दिया था कि सेटअप जल्दी हो जाना चाहिए उसमें. जैसे स्टैंडर्डाइज किया टूल की शटाइट स्टैंड, फॉर
एग्जांपल वी हैव नंबर ऑफ प्रेसेस, तो ऐसा स्टैंडर्डाइज किया है कि एक ही टूल मैक्सिमम प्रेसेस पे अकोमोडेट हो जाएगा उसको। तो जब इनमें से ये निकलते आया तो हम लोगों ने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते गए। तो हम लोगों ने देखा कि ये डाउन टाइम जैसे जैसे कम होता है, ऑपरेटर की इफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ती है। एम आई क्लियर सर? क्लियर। या हाँ, तो ये होने के मेहुल जी बाद कुछ हम कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए सर। यस यस प्लीज। अनिल सर, ये जो सेटअप टाइम एंड चेंज ओवर टाइम है, आर यू कंसिडरिंग दिस टाइमिंग एज अ वैल्यू एडेड टाइम और नॉन वैल्यू added value? It's a very good question you asked me, sir. There are two types of things. One is value added, one is non-value added. But in non-value added also there are two categories. One is necessary non-value added and one is unnecessary non-value added. So this setup is a non-value added time, but it is a necessary time. So whatever necessary non-value added time is there, we have to minimize it, and unnecessary totally eliminate it. See, for example, since you asked me question, I will tell you. See, we are planning some production activity, and for that we have to keep material ready with there. So what we are doing, we are creating a temporary store near the machine. Okay, so this is a necessary. Are you getting me, sir? Yes, yes. This is a necessary activity. But that machine, if that material I keep for 2 or 3 or 4 days without any planning, so that is a non-value added activity, unnecessary non-value added. But I am keeping it, it is getting immediately consumed. I am keeping it, getting immediately consumed. So this is a non-value added, but it is necessary non-value added. So likewise, we can eliminate non-value added, unnecessary non-value added activity. But there are many activities we are necessary, but they are non-value added, so that can be minimized. For example, inventory. So Singh Saab can throw more light on it. Say inventory, totally it is a non-value added time, sir. Okay. Okay, thank you. Yeah, but we cannot do without that. So what we have to do, we have to minimize it. As fast as possible, we should be able to convert our material. Our throughput time is more, if as fast as possible, if we move it. So the inventory level can be brought down. This is why I said, because this is not the area of my expertise, but whatever knowledge I have, I'm just sharing. Thank you, sir. Yes, sir. So even this quality is a non-value added activity, sir. If your process is foolproof, you should not be required to have checks, sir. So instead of quality control, you can shift to quality assurance, from quality control to quality assurance. If your process is foolproof and you are confident that whatever you are producing is a right product. So quality, again, it is a non-value added activity. But certain activities, they are non-value added, but they are necessary. This is what we have experienced, sir. So, और कुछ सवाल, sir? No, sir. From my तो side. फिर yes, sir. तो नीचे हम लोगों ने मशीन चलने का कुल समय 480 मिनट में से कितना चला है। अब हम लोगों ने 480 को 460 कर दिया है, सर, क्योंकि 10-10 मिनट हम ही ब्रेक दे रहे हैं। तो मशीन विल बी अवेलेबल। अब इसमें हम लोग एक चेंज कर रहे हैं, जहां जहां पॉसिबल है ऑटोमेशन कर रहे हैं हम लोग, साहब, कि ऑटोमेशन में रोबोटिक आर्म लगा, ये करे तो उस समय ये हमारा अप टाइम इंप्रूव हो जाएगा वेयर एवर पॉसिबल, और जहां वॉल्यूम ज्यादा है। देन टारगेट के अनुसार उत्पादन कितना होना था, फॉर एग्जांपल 8 घंटे चलिए और 100 पीस पर आवर है तो 800 होना थे, और एक्चुअल उत्पादन कितना हुआ तो ऑपरेटर की इफिशियंसी कितनी आ गई है। तो ये सेम डे होकर ऑपरेटर को बता दिया जाता है कि आज तेरी 90-95 के ऊपर हो तो हम बहुत डिस्कशन नहीं करते, पर 90 के नीचे तो फिर डिस्कशन चालू होता है, और 80 के नीचे तो इट इज टेकन वेरी सीरियसली। तो ये सिर्फ डिस्कशन, उसमें कोई शाउटिंग नहीं, कोई उनको ये करना नहीं है कि भाई डोंट वांट टू पुश देम टू कॉर्नर, क्योंकि उससे उनका मॉरल जाएगा। पर उनको यदि इसका हिस्सा बना दे कि भाई तू व्हाट डू यू फील, व्हाट मोर वी कैन डू टू इम्प्रूव योर इफिशिएंसी विथ फुल सेफ्टी and means taking care of your health and safety and everything, environment. So उनका involvement बहुत अच्छा हुआ है ऐसे इसमें, सर। Mr. Chetan has asked a question. How much time does it take to enter in one row?
सी व्हाट हैपेंस सर, अप टू टारगेट क्वांटिटी ये तो एक बार सुपरवाइजर भर देगा। ओके। हाँ, ये तो सुपरवाइजर ने, प्लानिंग वाले ने, सुपरवाइजर ने, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले ने ये टारगेट पर आवर ये तो उसने भर दिया। अब सिर्फ ओके क्वांटिटी और नॉट ओके क्वांटिटी उसको डालना है, और यदि रुका है तो यहाँ सिर्फ मिनट डालना है, 5 मिनट 7 मिनट इस कारण से रुका है। तो जब वो प्रोसेस चलती है तो ऑपरेटर बिजी नहीं रहता है, जैसे सीएनसी मशीन है। अब उसका सीएनसी मशीन का यदि साइकिल टाइम ही 5 मिनट है तो 5 मिनट तक ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग। तो वो क्या करता है, उसके बाद फिर डिबरिंग कर लेता है, फाइलिंग कर लेता है, उसके बाद इसमें लिख लेता है, जो पार्ट प्रोड्यूस हो गया उसकी क्वालिटी चेक कर लेता है। तो साइमल्टेनियस उसको इतना टाइम मिल जाता है लिखने के लिए उसको, है ना। इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स। अब हर एक को हिंदी में लिखना है इसीलिए हिंदी में रखा है उनको, तो 2 मिनट भी नहीं, बहुत ज्यादा हो गया 2 मिनट तो मेरे हिसाब से, यानी हाफ अ मिनट इज इनफ फॉर हिम, क्योंकि क्वांटिटी डालना है उसको हर 1 घंटे बाद उसको। और ये नीचे का पूरा सुपरवाइजर भरेगा कि मशीन चलने को समय, और उसको तो सिर्फ ये देख के उसको हैंड ओवर कर देना है सिर्फ। एनी क्वेश्चन सर? नो सर, थैंक यू। तो एक ये हो गया है। अब मैं मिस्टर वैभव हैज अ क्वेश्चन। या सर प्लीज। ये ऑपरेटर आपका भर के एक बार ये शीट आपके सुपरवाइजर को दे देता है, तो वो सेम डे इवैल्यूएट करके नहीं, नेक्स्ट डे देगा, क्योंकि 3:30 बजे शिफ्ट खत्म हुई और दूसरे आते तो वो उनको करने में सिर्फ कलेक्ट करके, और वो जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, उसके पास देगा भर के, सुपरवाइजर भर के दे देगा, मैनेजर उसका इवैल्यूएशन करके नेक्स्ट डे बुलाते हैं सब उनको। नेक्स्ट डे अब जैसे 7:30 से 12 बजे, अब 12 बजे रात को तो रोकने का संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे उनसे बात की जाती है। और जहां भी 90 से नीचे है, 90 के ऊपर है तो हम सिर्फ बता देते हैं कि यू स्टिल नीड टू इम्प्रूव। और इवन कई बार तो ऐसा हुआ 100% से ऊपर भी आया है, तो हमारे यहाँ एक अप्रिसिएशन लेटर एक हमने बनाया हुआ है साहब, कि उन लोगों को एक अप्रिशिएट करना है। तो यदि प्रोडक्शन अच्छा निकला और कंसिस्टेंटली निकला है तो हम लोग उनको ग्रुप में टी टाइम में हम लोग उनको एक अप्रिसिएशन लेटर देते हैं। तो नॉर्मली एक साइकोलॉजी है कि जब व्हेन यू आर अप्रिशिएटेड अमंग योर ग्रुप, तो योर मॉरल दैट बूस्ट योर मॉरल। तो ये हम लोग थोड़ा सा करते हैं इसको, कि जो उसने कंटिन्यूअस अच्छा प्रोडक्शन निकाला है। तो मिस्टर प्रणव, आपने हैंड रेज किया हुआ है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? दिस इज अ गुड एक्टिविटी। थोड़ा सा वॉल्यूम, वॉइस थोड़ा सुनाई दे रहा है अभी? हाँ थोड़ा आ रहा है थोड़ा। हाँ, दिस इज अ गुड एक्टिविटी, इनफैक्ट गुड इनपुट फ्रॉम द ऑपरेटर। मेरा सिर्फ एक व्यू पॉइंट ऐसा था कि इफ दिस कुड बी ऑटोमाइज्ड, लाइक ऑटोमेशन अगर किया जाए उसके ऊपर, तो वन कैन गेट द रियल टाइम डेटा। फॉर एग्जांपल, इफ मशीन इज अंडर ब्रेकडाउन और अगर वो 2, 3, 4 घंटे तक कुछ होता नहीं है, तो ये सीट तो आएगी पूरे दिन के बाद, बराबर है। उसके ऊपर एनालिसिस करने में भी बहुत टाइम लगेगा, सारे डेटा कैप्चर करके, अगर बिकॉज ऑफ मशीन ब्रेकडाउन और बिकॉज ऑफ XYZ रीजन क्या प्रोडक्शन लॉस हुआ, उसके लिए आपको सारा डेटा कंपाइल करना पड़ेगा। तो अगर एक छोटे से प्रोग्राम के जरिए इसको ऑटोमाइज किया गया, तो यू विल हैव ऑल एनालिसिस ऑन अ फिंगर टिप। यस सर, तो आपने बिल्कुल अच्छा वैलिड सजेशन दिया है, पर हमारा ऑलरेडी चालू हुआ है। हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो अहमदाबाद की एक कंपनी है, एंड दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो हम लोग क्या है, सुपरवाइजर को एक पाम टॉप देने वाले हैं हम लोग, कि उसको ये पूरा फॉर्मेट उसमें बना हुआ है, पर ये पर्टिकुलरली वो डालेगा ये जहां मेजर टाइम लॉस हो रहा है। पर कुछ एक्टिविटी है ना, वो हाथ से करना ही ठीक रहता है, जैसे पर्टिकुलर सिर्फ ये फॉर्म फिल करना, अलर्ट आने के बाद एक्शन चालू हो जाएगी। पर ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, कि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ये जो एक फीलिंग आती है। अब यदि फिर सब कंप्यूटराइज कर देंगे ना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी कम नहीं करना, तो वो भरेंगे। पर जहां जैसे आप बता रहे हैं कि लंबा ब्रेकडाउन आ गया, जहां ज्यादा टाइम जाना है, तो वो सिस्टम थ्रू अलर्ट आ जाएगा। वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है सर? अनिल जी, मैं एक बात करना चाहूंगा। बोलिए सर। अगर जैसे ही हम लोग ने भी ऐसा किया हुआ है कि ये फॉर्म्स हम लोग ऑपरेटर के पास, लेकिन कंप्यूटर में भरवाते हैं हम लोग। ओके सर। हम लोग ने ये शीट बना के दी है उनको, एंड वो ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो
जैसे आपने बोला कि उसके पास 5 मिनट या 10 मिनट का ट्रांजैक्शन टाइम है उसके पास में। हाँ, डिपेंड करता है किस टाइप का आइटम चल रहा है, कहीं कहीं तो 1 मिनट का भी साइकिल टाइम है और कहीं 10-10 मिनट भी है, बराबर है बिल्कुल। तो हम लोग ने क्या किया होगा कि भाई वॉकेबल डिस्टेंस में ऐसे सिस्टम्स लगा के रखे हैं which has this forms. Okay. And तो जो प्रोडक्शन मैनेजर या जो भी है, he has time to assess it even during the day. Okay, very good. This is what we have done. Very good sir. आपका ये बता रहे हैं, अब प्रैक्टिकली हमारे यहाँ कैसे पॉसिबल है देखता हूँ कि मेरे यहाँ क्या है साहब, राइट फ्रॉम कॉपर मेल्टिंग फर्नेस से लेके तो एक बफिंग मशीन तक ऐसे 250 वर्क स्टेशन है मेरे यहाँ। अच्छा, क्योंकि वी आर मैन्युफैक्चरिंग वेराइटी ऑफ पार्ट्स, फोर्ज पार्ट्स, स्टैंपिंग पार्ट्स, उसके बाद में कॉपर फॉइल बनाते 30 माइक्रोन की, नोज को फॉइल से फ्लेक्सिबल बनाते, उसके बाद में सीएनसी मशीन है हम लोग पास में। तो ये इतनी वेराइटी है, अब वो 250 मशीन के ऑपरेटर आके वो हर जगह भरे। सेकंडली लास्ट टाइम आप थे कि मुझे आइडिया नहीं कि आई स्टार्टेड विद 4 पीपल एंड आई हैव गॉट ऑलमोस्ट 360 पीपल विद मी। तो अब उसमें क्या हुआ है कि शुरू में मेरे यहाँ बिल्कुल लो लेवल के लोग आए कि उनको ये लिखने में भी बहुत सिखाने में तकलीफ हुई हमको। उनसे ऑपरेट कराओ तो मशीन बहुत अच्छी ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग सीएनसी मशीन सर, और उनको लिखने का बोलो तो थोड़ा हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल लिखने पढ़ने में कम है हम लोगों के यहाँ। तो इसमें पर आपका सजेशन बहुत वैलिड है, इन सब अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम कैसे कर पाएंगे वो थोड़ा हम लोग अभी देखते हैं साहब। बाकी सजेशन अच्छा है कि ऑनलाइन चले, पर ये सुपरवाइजर कर सकता है। अच्छा, नीचे जो हम लोगों ने लिखा है ये सारा डेटा कंप्यूटर में जा रहा है उसकी इंडिविजुअल फाइल में। हमारे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो टोटल इसका बनाता है, तो जब हम फिल्टर करते हैं ऑपरेटर वाइज तो उस ऑपरेटर ने कितनी क्वांटिटी बनाई, कितना उसका ओके निकला, या उसके समय मेंटेनेंस आया, इसका मतलब उसको मशीन ऑपरेशन का नॉलेज एक बार और ट्रेनिंग के। अच्छा, इससे सर एक बहुत अच्छा निकलता है कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छा हुआ है इन चीजों से, क्योंकि जब पैरेटो एनालिसिस करते हैं तो ऑन द पैरेटो स्केल वी फाइंड कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी में ही टाइम क्यों लगा, तो कुछ ऑपरेटर है जो खुद इंस्पेक्शन करना अवॉइड करते हैं, तो उनको फिर इंस्पेक्शन की ट्रेनिंग बार बार दी जाती है। या किसी के समय ब्रेकडाउन ज्यादा आता है टूल का, तो भाई तेरे को टूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, चल तुम्हारी एक ट्रेनिंग करवा देते हैं इसकी। तो इन चीजों से हमारा ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प हुआ है हमें। तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इससे हमारी कई चीजें निकल आई, वेस्ट एलिमिनेशन और प्लस अपग्रेडेशन ऑफ अवेलेबल मैन पावर, ये दोनों चीजें इससे बहुत अच्छी हुई हमारी। अनिल जी, यस सर, we many times observe कि जब हम when we go to the airport तो Okay. चेक-इन के लिए सेल्फ चेक-इन कियोस्क होते हैं। ओके, तो more than 60-70% of the passengers still don't know how to use that. ओके। So they always keep a person there who helps them out in entering that, you know. बराबर है, जबकि लिटरेसी लेवल उनका तो बहुत ज्यादा है जो फ्लाइट से ये कर रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसा अगर if that is ऐसा कोई सॉल्यूशन अगर निकलता है तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल बराबर है साहब, करेंगे उसमें बिल्कुल। इट्स अ गुड सजेशन और दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग। हाँ जी, एवरीबॉडी इज बेनिफिटेड सर, श्योर। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सजेशन। और कुछ तो एक सिर्फ सैंपल भरा हुआ शीट में देता हूँ यदि। हेलो, या please. shall I continue? Please. Yes, please. Yes sir. हाँ, ये है सर, यस, ये एक भरा हुआ है सब हम लोगों का। हाँ, तो जैसे ये डेट अभी कल का है शायद, ये इसमें राजेंद्र बोड़खे उसका 160 उसका ये है, ये कंपोनेंट बना है VMC 04 पे, पार्ट का नाम ये है। अब ये टूल नंबर इसलिए नहीं डाला है कि उसमें फिक्चर लगा हुआ रहता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट बना रहा है ये फास्ट मूविंग पार्ट है सब ये। राइट। अच्छा, इसका जो टारगेट है ये 96 है। अच्छा, प्लान क्वांटिटी उसने इसलिए लिखी नहीं है कि ये बैच में नहीं है, ये कंटिन्यू चलना है अभी। ओके, तो टारगेट पॉइंट 96। अब उसने पहले इसमें 80 बनाए तो इसमें 10 मिनट चेकिंग में गए। ओके, बराबर।
है ना। तो ये सब करते हुए उसने ये बनाते बनाते उसने अभी इसको बनाना था, अवेलेबल टाइम 440 मिनट्स रहा उसको। तो 440 मिनट कैसे हैं, तो 10-10 मिनट के उसको 2 टी ब्रेक हुए, जो उधर 9 से 10 के बीच में है और इधर 2 से 3 के बीच में है टी ब्रेक, और हाफ एन आवर का लंच है, और 10 मिनट मशीन कुछ लिखा हुआ है, मेरे को समझना पड़ेगा, पर तो ऐसे ये उसके टोटल हटाने के बाद इसको 440 मिनट मिले, और इसमें उसके करीब 700 बनाते और 696 बने उसके पीस। तो उसका ऑपरेटर की इफिशिएंसी है वो आई है 99.44, और ये ऑपरेटर का सिग्नेचर, सुपरवाइजर और मैनेजर के सिग्नेचर। ये ऐसा एक फॉर्म हमने भरा हुआ है, सैंपल का मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। हाँ। तो ये सभी के इस फॉर्मेट में आते हैं, और ये जॉब रूट कार्ड उसने जो बनाए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जॉब रूट कार्ड्स ही हैज प्रोसेस, क्योंकि एक जो बिन है उसमें हम 15 kg से ज्यादा मटेरियल नहीं रखते हम लोग। बराबर। तो उसने ही हैज प्रोसेस 7 जॉब रूट कार्ड्स ड्यूरिंग दैट अवेलेबल टाइम, और इसमें हमने दोनों डाला है, जैसे ऊपर शिफ्ट में फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड होगा तो इट विल बी 3:30 to 4:30, 4:30 to 5:30। अब ऑपरेटर को सिर्फ यहाँ लिखना है ओके क्वांटिटी, नॉट ओके, और कहाँ टाइम वेस्ट हुआ उसका, बस। तो ये भरा हुआ एक फॉर्म है साहब। ओके सर? राइट सर, थैंक यू सर। जी। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं ना आप? हाँ, ऑफ किया है। तो करूं क्या मैं फिर से? नहीं, मैं इसको आप ही को उसको स्टॉप करना होगा। अच्छा, ओके या नहीं, यहाँ है ऑप्शन। ओके, हो गया? राइट, यस, ओके। सो थैंक यू सो मच मिस्टर अनिल। सच में मैं जो सोच के हमने ये एक मुहिम शुरू की थी, एक छोटी सी एक प्रयास शुरू किया था, मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरती से इसका जो गणेशाय नमः हुआ है, और बहुत ही मतलब एक आर्टिकुलेट पर्सन के हाथों से हुआ है, और जिस गहराई से और जिस क्लैरिटी से आपने ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड नाउ जैसे हमने कहा था कि we will keep this an open session, तो anybody of you would like to take the to ask question, to add input, जैसे अनंत भाई ने कहा कि आपकी फैक्ट्री में अनंत जी आप कैसे कर रहे हैं, या मेहुल जी भी काफी, he belongs to HR fraternity, बट जब भी मेरा इनके साथ इंटरेक्शन होता है मुझे कुछ ना कुछ नया इंसाइट क्रॉस फंक्शनल भी मिलता है। तो now we will keep it a sort of a virtual tea kind of thing. Thank you very much. Thanks for giving me this opportunity. It is pleasure and honor for us. Thankful to you, sir. Yes, And it was really good knowledge for us. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you. तो अच्छा, चलिए, लेट मी टेक द इन। आपको क्या लगता है कि अनिल जी की जो आपने बात सुनी, और क्या क्या स्कोप है, या आपके दिमाग में और कोई आइडिया आता है जिससे हम क्वालिटी मेंटेनेंस से क्वालिटी एश्योरेंस पे शिफ्ट हो सके? जैसे इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात बताई कि भाई, जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन क्या है, तो मैं ऐसा कहूँगा कि भाई वैल्यू एडेड टाइम एंड नॉन वैल्यू एडेड टाइम, है ना। अक्सर हम कई बार डिस्कशन करते हैं कि जो 80-20 प्रिंसिपल है, इसमें इतना इंग्रेन कर दिया है हमारे दिमाग में कि भाई 80% एक्टिविटीज जो हैं, 20% एक्टिविटीज ही काम की होती है, 80% काम की नहीं होती है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको वो 20% के लिए भी 100 तो चाहिए ही, बराबर। तो हम क्या समझने लगे कि 80% इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, है ना। तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से मिस्टर अनिल जोशी ने हैंडल किया, और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन वो था। आपके लिए क्या था समीर जी? मतलब एक एक करके हम एक एक लाइन में बताएं, फीडबैक दे मिस्टर अनिल जोशी को कि हमारे लिए व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग सेशन, लर्निंग पॉइंट। सबसे अच्छी चीज थी कि देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटर इनटू द प्रोसेस। तो वो होना, जैसे उन्होंने कहा था कि unless and until someone who is operating the machine, he himself is involved in reporting or in a process of data analysis or something,
तो उसका एक अपने आप में जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत नीचे का लेवल का होता है एजुकेशन, उसका इतना नहीं होगा, ऑपरेटर लेवल का है, उसके बाद भी अगर वो खुद इनपुट कर रहा है तो उसका एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल, यस। और समीर जी, मैं अगेन जिस ऑर्डर में मुझे आपके वीडियो दिख रहे हैं उसी ऑर्डर में मैं आपको कह रहा हूँ। समीर जी, what was the most important learning thing that you take away from Mr. Anil Joshi's contribution? One learning, I am not from the production side, right? Manufacturing side. My basic work is marketing, right? But when we go through the whole process that he explained, what I realize is that it is up to the management to design such procedures and systems in a manner in which it becomes easy for the worker level person to adopt it with responsibility, and the management gets its desired analysis of the data. Beautiful, yes. Very true, sir. Thank you. Great. Anand ji? The best part that I liked is that if there is any rejection or the target is not met with, they discuss it with the operator and try to analyze it. And if he has done something good, they appreciate. That is one of the best things that can be done, according to me. Great, great, great. मेहुल जी, और आपको अनम्यूट करना होगा. Unmute. Anil ji, thank you for sharing such a wonderful sheet with all of us. What I would like to add or share here that if you do from each work center, if you create some Kanban kind of a system over there, so that whatever the part is available, small inventory items or something which operator has to look for, it is available at his work center only. So that may give some more time saving or a productive time. He can go for a productive time. Yeah. That is Thank one you. thing. Second thing, it is good that yes, it is giving a chance to operator to fill everything. So he is taking ownership of that particular work. Exactly. That is very important. Okay, and it gives a sense of responsibility to any operator or a supervisor or whoever in this process involved. Everyone will have a sense of responsibility, and that creates a synergy in this work. Third thing, very good point you have highlighted that training need is also identified based on this sheet, which is ultimately give the job enrichment over a period of time for that particular operator or a person. Because when you find out that which are the core areas he's good at and where the area of improvements. Okay, so ultimately you will get over a period of time, he will get a more knowledge on certain aspects and he developed himself. So that job enrichment is possible. Maybe I can would like to tell if you can add some multitasking or multi-skilling aspects also along with this, then it will be more helpful in this process. Thank you. Great. Thank you. Pranav ji, you are finished, Mr. Mehul? Is it? Okay. Mr. Pranav ji, sir, Mehul ji said something, so can I add one thing? Yes, please. Yeah, please. Yes, sir. He's everybody has given very good feedback, means very good input for me to improve. I'm not saying good feedback means all good thing about me, but good input I am getting for improvement. So one thing Mehul ji has said that multi-skilling. So that is already there in our factory, sir. My press operator can operate CNC machine. My CNC operator can operate drilling machine.
So that multi-skilling is already there, because as I said, I have got 250 workstations and full 2 shifts and partially 3rd shift is running. And I have got a strength of hardly 300 people working in production department. So 3 shifts, 100, 150. So this 150, more than 200 workstations are available. So that's the reason we are able to, pull on the show. Because my press operator is not there, then CNC, if load is not urgent or that much load is not there, he shifted to press. So that is the strength of my company. Almost 70-80% people, they can operate all the machines available in the factory. Very nice, very nice. Yes. Thank you, sir. Thank you. Mr. Pranav, आप कुछ कहना चाह रहे थे? You have आपकी voice. Unmute. Wait. Yeah. I just wanted to share one incident. थोड़ा सा पास आकर. Hello. Yes. I just wanted to share one incident in our factory, which is related to the psychology of the operators. हमारा जो machine है, we are producing khakra, as I told. तो capacity of one machine is 200 kg per day. तो हम शुरू में क्या करते थे? We had a batch of 10 kg each. तो हम 18 batch से हमने start किया था. It comes to 180 kg per day. तो बहुत कोशिश करने के बाद भी we could not reach to 200 kg per day, which is the actual capacity of the machine. लेकिन होता था क्या कि अगर 18 बैचेस जैसे ही कंप्लीट हो जाते थे तो वर्कर्स को ऐसा होता था कि हमारा काम फिनिश हो गया. तो व्हाट वी डिड, विदाउट इन्फॉर्मिंग वर्कर्स, वी चेंज द बैच साइज टू 11 kg. तो 11 kg का 18 बैचेस हो गई, तो 200 kg पर डे का प्रोडक्शन हो गया. Okay. This is just an incident which I wanted to share. So ये भी like many times these type of psychology also play the role. Okay. This is important point. Last में हम थोड़ा सा इस पे और रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे. तो मिस वीना, आप मुस्कुरा रही हैं. आपको याद आ रहा है हमने कुछ ऐसा सिस्टम आपके प्लांट के लिए बनाया था, याद है, बिचल से फाइल में. मैं जब आप व्हेन यू जॉइंड, तो मुझे वो सीन याद आ गया कि कैसे हमने इस तरह का प्रोसेस आपके प्लांट में बनाया था. बट वीना जी, आपका इंट्रोडक्शन रह गया है. आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. आप लेट आई हैं, एंड देन आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको अनम्यूट करना है. हाँ, किया. या प्लीज. Good afternoon, everybody. I'm Veena Parikh from Shasha Systems Private Limited, and we are in manufacturing of hydraulic cylinders and power packs. My factory is situated at GIDC Dehgaon, and accounts and operating office is in Satellite. And we are manufacturing customized hydraulic cylinders, and we are manufacturing force feed lubrication systems for compressor industry, and we are OEM for them. So these are our products, and I am holding 2 private limited companies. We are in manufacturing, and definitely I have missed something, in fact half an hour something, so I cannot give lots of inputs or something, but I never got the things I missed actually. So in fact Anil bhai ko main ye bolna cha rahi hu ki Anil bhai, we are also maintaining operator cards, but lots of things are there which you have added, and definitely I'll be adding in my operator card also. So we will be, I'm improving that. Great. I'll be happy. Okay. Mr. Vaibhav, what is one thing that you find very important which you can implement in your life, your business, your process? Sir, we are not into production, but we are into kind of projects. What I like best about this entire operator card is जो responsibilities है वो even out कर दी गई हैं. Generally क्या होता है, breakdown है, non availability of material है, load है, वो सारी चीजें ऑपरेटर के सर पे डाल दी जाती है. भाई तेरे को, as Anil ji mentioned, 96 करना चाहिए था तो 80 पे आ गया, 85 पे आ गया. So this also gives the management a introspection, space for introspection कि भाई मेरा लोड पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है. जैसे बहुत अनिल जी ने has mentioned very correctly कि मेरे को देखना पड़ता है कि मशीन अवेलेबल है कि वहां पे लोड है कि नहीं है, तो मेरे को काम लाना पड़ेगा उसके लिए. तो ये दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करता है.
आपका काम बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, मेंटेनेंस बराबर हो रहा है नहीं हो रहा. So it is not only the operator who's to be blamed, but the entire process. It fixes the responsibility on each and everyone. दूसरी चीज जो सबसे अच्छी लगी, which I have rarely found anywhere, is reverse integration, backward integration. कि एक मशीन अगर एक पार्ट निकला है तो वो कहां से होके गया है, उसमें कौन से बैचेस में ट्रबल आ सकती है, उस बैचेस का रॉ मटेरियल कहाँ है, जो इन्होंने बैच चार्ट या प्रोसेस फ्लो चार्ट एक बताया था, तो उससे देख इट कैन बी वेरी इजीली कि भाई एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर ये ट्रबल है तो दे कैन चेक इट, बाकियों में तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, which is very rare thing to be found in Indian manufacturers. अभी तो ये होता है कि बंद के जाने दो, जब प्रॉब्लम आएगा तब देखेंगे, तब देखा जाएगा. That is very true. Right, okay. Mr. Chetan, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Mr. Chetan, yeah. What is one thing that you found applicable in your business, in your, or what you could apply in your life in one way or other? See, I am into HR since 20 plus years, but basically being an engineer, I have worked in engineering for 10 to 11 years, and I was also into industrial engineering. So I was able to but what I would say is that whether in HR company or any company, any engineering company or anywhere, whenever you make the operator or a person accountable on a daily basis, and you keep track of that, and you ask for the inputs. If it is less, then you ask kya hua, kyun hua, and then you identify the gap in training and all these things. And when they do a good job, you appreciate. So all these points, whether in an engineering company or into HR or in any company, it will help. Great. Yeah. Mr. Kumar, can you hear us? Can you come in? I can very much hear. Hello, sir. Yeah, hello. I mean, you also joined in late, so if you can give your brief introduction and whatever you have attended, if you can, just see, this exercise is very important. जब हम कहते हैं किसी को कि you tell us one point which was important to you, तो you reflect back into the whole session और वो ingrain हो जाता है आपके mind में, है ना? और कभी कभी क्या होता है, कोई बात जैसे हमने गलत समझी है तो स्पीकर अगर हमारे पास में है, साथ में है, तो वो उसे क्लैरिफाई कर सकता है कि मैं ये नहीं, ये कहना चाह रहा था, राइट? सो मिस्टर कुमार, सो फर्स्ट यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Hello everybody, this is Kumar. I am from Bangalore. My company name is Varsha Incorporation and we are into vacuum conveying system and dust collection. We are into centralized dust collection systems too. And I have been introduced by Mr. Siddharth Dinesh Bhai from Tintech Equipments. And I've been attending sessions from Ranbir ji, and it's quite informative for us, for our day-to-day activities. I'm basically a trader, actually. Okay. Thank you. So whatever you have heard, anything important that you can take home? Yes, very much. Like there were SWOT analysis. There were certain points where we have started implementing in our factory also regarding the strengths. We had a discussion about we have to know our strengths rather than knowing our weaknesses comparingly with the competitors. That was a very striking point for me. And then likewise in one session of emotional intelligence. So that was also very interesting for me. Okay, great. Okay, fine. Mr. Pranav, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? I already said my. Okay, fine. तो कुल मिलाकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम अक्सर साइकोलॉजी में कहते हैं कि आप जैसा एक्सपेक्ट करोगे वैसा मिलेगा, और अनिल जोशी जी ने आज रियलाइज कराया कि केवल एक्सपेक्टेशन अपने आप में पूरा नहीं है, इंस्पेक्शन भी उतना ही जरूरी है. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड इंस्पेक्शन which can give you the output that you desire, right? तो I think ये काफी value added रहा ये session, right? तो then again I want to ask you कि next week, देखिए कल हम लोग performance management system पे करने वाले हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो सुबह 11 बजे तो प्लीज ज्वाइन इन, है ना? हम इसी तरह से जी Yeah. I have got another session. Okay, 10 fine. to 11:30, 10 to 12. I have got Fine. one more means other session. कोई बात So नहीं, I won't be able to join.
नो प्रॉब्लम, जितने ज्वाइन कर सके उतना अच्छा है, एंड वी कैन कंटिन्यू दिस थिंग। फिर नेक्स्ट सैटरडे हम थोड़ा सा PMS पे डिस्कस कर if you लेंगे। can record the thing and put it on YouTube or something, so I can पता at नहीं least अनिल see जी, what डू is यू in that. माइंड अगर ये सेशन जो रिकॉर्ड हो रहा है इसको हम YouTube पे रखें तो, बिकॉज ये उनका थोड़ा सा प्रोप्राइटरी मटेरियल भी रहता है, तो समटाइम्स So it can be shared personally, link. थोड़ा अनिल मैं जी, बात करता हूँ। यस जी सर। जी सर ये कर सकते हैं, मैं तो आई बिलीव इन नॉलेज शेयरिंग सर, जी क्योंकि जी कुछ ऐसा प्रोप्राइटरी जैसा नहीं है। ये प्रोप्राइटरी वो होता है जैसे जहां मैंने NDA साइन किया है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो कस्टमर के ड्राइंग्स है या कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस है, That you so do. these are good practices, and if it is shared, it will be rather, it's an honor for me, so we can do it sir, क्योंकि if Sure. somebody is benefited, so that's my pleasure sir, no issue sir. श्योर Thank you. एक और Thank बात you. बोलूं सर, जी कि जैसे अनिल जी ने बताया कि ही एक्चुअली उन्होंने तो यही कहा कि भाई नॉलेज शेयरिंग है, जिसको जो भी जितना ले सके अच्छी बात है, लेकिन शेयर करने के बाद भी अगर मैं वो आइटम यूज करके उसका कोई उपयोग ना करूं तो मेरे लिए कोई फायदे वाला काम नहीं है। So it will be when he shares it on YouTube, for example, and those who will take benefit of it and implement it, उसी को फायदा होने वाला है। बाकियों के लिए सुना निकल गया। समीर जी, ये भी एक मिथ है कि हमने जो अपने दिमाग में बिठा रखा है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो कुछ इफेक्ट नहीं होता है। ये मुहावरा ही था। What I'm saying is, knowing something and using that knowledge are two very different things. I understand, but मैं एक थोड़ा सा आपके सामने ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि फ्री सेशन का कोई फायदा नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में हूँ। क्यों, मैं आपको बताऊं। एक बार मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ और उनके चेयरमैन के साथ मेरी मीटिंग थी। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा कि आप हमारे बंदों को चेंज कर देंगे। मैंने कहा नहीं साहब, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को चेंज कर सकूँ। पर मैं उनको एक आइडिया दे सकता हूँ कि जीवन को या काम को देखने का ये भी एक नजरिया है, राइट? बिल्कुल है। और जैसा कि कहते हैं कि इट्स बेटर टू हैव अ बुक एंड नॉट टू रीड इट रादर देन नॉट हैविंग अ बुक व्हेन यू वांट टू रीड इट। इसी तरह से इट्स बेटर टू हैव एन आइडिया and not to use it rather than not having an idea when you want to use it. Good. Yes, marginally better. जी सर, लेकिन आइडिया अगर है तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में आ ही जाता है। आ ही जाता है क्योंकि आ ही जाता है कहीं भी। जी, क्योंकि एक काम से जब चीज घुसती है तो बीच में एक बहुत थोड़ा बड़ा दिमाग में फिल्टर रह जाता है, वो रह जाता है। लेकिन वो जहाँ लगना होता है वहां पे तुरंत फिर निकलता है बाहर। बिल्कुल निकलता नहीं, है। अब ये लगना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल निकलता है। मेरा ये सिर्फ बोलने का मतलब यही था। नहीं, आई एम वरीड अबाउट अनिल जी, इसलिए कि उनको उन्होंने तो अपना आइडियाज रख दिया हमारे सामने। सर, पर्सनल जो ग्रुप में लोग हैं उन पे शेयर करवा देते हैं, उनसे ही शेयर कीजिए ना, आप ठीक है। YouTube पे मत कीजिए, पर्सनल है। ग्रुप पे कुछ ऐसा वो जो है शेयर कर दीजिए। कोई नहीं, तो ठीक है। एटलीस्ट जो आगे का मेरा छूट गया है, आई विल सी दैट, एंड जो मुझे ऐड करने का है मेरे ऑपरेटर कार्ड्स और इस सब में, जो आई फाउंड दिस वेरी गुड कि मींस अगर ऐड करूंगी तो आई थिंक आई विल बी एबल टू ट्रैक ऑल द थिंग्स, Done. तो वो मुझे मिल जाएगा। सो आई वाज कंसर्न अबाउट दैट ओनली, कि और दूसरा मिस भी हुआ है आधा मेरा। Done, madam. प्लीज, थैंक यू। Your wishes are command. और नेक्स्ट कल का भी मैं मिस करने वाली हूँ। जरूर, वो भी। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के लिए who would like to contribute? देखिए, ये सब इंटरनल ग्रुप है, हम आपस में बस इसी तरह से चैट करेंगे और कोई फॉर्मल हम वो उसकी जरूरत नहीं है। बल्कि आप बिलीव मी साहब,
मैं इतने सालों से सेशन करता हूँ, अब भी जब कोई सेशन करना होता है तो मुझे बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है। और जब भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, उसको प्रिपेयर करने के लिए मैं नहीं मानता अनिल जी जोशी बस आज आप उठे और 5 मिनट पहले आकर बैठ गए। आपने जरूर सोचा होगा कि मुझे अपनी बात कैसे रखनी है, कौन सी बात को किस तरह से प्रेजेंट करना है, और उसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, राइट? आई कैन, राइट? तो अगर आपकी कोई भी आपको लगता है एक्सपर्टाइज, आप सोचिए, आप मत सोचिए हमें पता है या नहीं पता है, बट आप किसी भी चीज पे 15 मिनट के लिए बोल सकते हैं। यू पिक दैट एंड स्टार्ट टॉकिंग, है ना? एंड यू विल रियली एंजॉय, you will enjoy preparing also and you will enjoy speaking also. तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को कौन कंट्रीब्यूट करेगा? चेतन भाई को बोलिए ना प्रेजेंट करने के लिए, वो एचआर के हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एचआर ही है। हम क्योंकि अभी आजकल तो उनके सिचुएशन, उनके सजेशंस की ज्यादा जरूरत है। तो चेतन भाई नेक्स्ट वीक यू वुड बी टेकिंग ओवर? Okay, sure, I'll do that. Yeah. ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और इफ एनीबडी एल्स आल्सो थिंक्स कि ही कैन कंट्रीब्यूट, तो हम लोग 15-15 मिनट के 2 सेशन में, वैसे जिस तरह से आज इंटरेक्शन हुआ, आई थिंक इट्स ओके, बट किसी और को भी अगर कंट्रीब्यूट करना है तो प्लीज फील फ्री। ठीक है, आनंद भाई, समीर जी, वैभव जी, बीना बहन, मिस्टर मेहुल, मिस्टर कुमार, मिस्टर प्रणव। Sir ji, right? I am from marketing, but usually I'm the last person to volunteer to speak. No, but marketing is also very big issue. Actually, marketing is not easy thing, because I am doing. That is what it is, a proprietary matter. Cannot be disclosed. That is true. That is proprietary. Marketing में क्या proprietary sir? See, marketing जो लोग बोलते हैं कि बस ये सेल किया या जस्ट ये ऐसा किया, ऐसा इजी मुझे नहीं समझ में आता है कि वो है। सो कुछ भी जरूर 100% आपका भी ऐसा होगा ही कि जो की होगा और हम लोगों को मिलेगा, because I am not in marketing, but definitely I am doing sales and these things of my company. Great. So definitely I would like to learn more. Very recently अभी किसी sometimes हम पूरे साल की बात 1-2 लफ्जों में भी कर जाते हैं लोग। ऐसा तो एक बहुत छोटी सी क्लिप आई थी just explaining कि what is more important in marketing, and they said the first thing is empathy and you need to connect. If you connect with the person with whom you are talking or whom you would be dealing with in future, and if there is empathy involved somewhere wherein the connect happens between the two, and you don't even talk about the business, फिर भी business होगा। होता है, yeah, that I experienced. प्रणव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah. Recently, since last 3 months, everything has changed. Even since we are having Honda dealership, तो हमने जब चालू किया तो कस्टमर वॉकिंग्स बिल्कुल है ही नहीं। इट्स बिग क्वेश्चन ऑन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो जब भी हम मार्केटिंग की बात करें तो एक छोटा हमने जो इनिशिएटिव यहाँ पर लिया, आई थिंक इफ ऑल एग्रीज आई कैन शेयर दैट। यूजुअली ऑटोमोबाइल्स में जो सेल होता है वो लोन एक्सचेंज मेला या कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से होता है। तो ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम स्पेस रखता है, क्योंकि आपको टच एंड फील या आपको एक कनेक्ट, जो इन्होंने कहा कि मार्केटिंग में कनेक्ट चाहिए, वो मिसिंग होता है। तो हमने एक सिर्फ वर्ड बनाया कि वर्चुअल लोन एक्सचेंज मेला, लोगों को चाहिए लोन एक्सचेंज मेला, तो हमने एक वर्चुअल लोन एक्सचेंज मेला बनाया। हमने मार्केटिंग प्लान उसका बना के फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमारे कस्टमर के साथ लिंक शेयर किया, और हमने 4 ऑप्शंस कनेक्ट करने के लिए रखे, जिसके अंदर एक हमने पूरा रूम बनाया। वो रूम के अंदर हमने व्हीकल्स रखे, उसके बाद कैमरा सब सेटअप करके जूम कॉलिंग, गूगल डियो, व्हाट्सएप कॉलिंग, और एक 4 ऑप्शन रख के हमने कस्टमर को बोला आपको जहां से कॉल करना है आप कॉल करिए। आप मानेंगे नहीं, कस्टमर ने हमें 20-20, 25-25 मिनट वीडियो कॉलिंग किए, और 2 दिन में हमने 20 गाड़ी बेची थ्रू दिस वर्चुअल लोन एक्सचेंज मेला, विदाउट ग्रेट अचीवमेंट। 2 दिन में, जैसे हम एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देते हैं या लोन एक्सचेंज मेला फिजिकल करते थे तो 30-40 इंक्वायरीज आती थी, या वर्चुअल लोन एक्सचेंज मेला में हमें 50 इंक्वायरी 2 दिन में आई। Great. So this is the thing what we the moment you people share, we learn something
okay, no point, no, we cannot say कि we are learning lots of things, but at least one point is there कि you don't say कि it's nothing is there. अब यही फिनोमिनन देखिए आज भी हो रहा है. अगर हमने वैसे कोशिश की होती कि अनिल जोशी इंदौर में बैठे हैं, समीर शाह कहाँ बैठे हैं, अनंत पटेल छतराल में बैठे हैं, वैभव जी कहाँ बैठे हैं, कि चलिए हम 10 लोग मिलते हैं, बेंगलोर में बैठे हैं मिस्टर कुमार, कि चलिए 10 लोग मिलते हैं, लेट अस एक्सचेंज आइडियाज, तो क्या ये पॉसिबल होता? नहीं, अगर ये सोचते कि नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर पाते. लेकिन आज वर्चुअली एटलीस्ट हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए. We are associated, yeah, that is very true. And it's good connection. In this group, I mean, at least I feel we are for business. That is the thing. Right. At least we are learning business from everybody, and we are connecting. That is the thing. Right. So thanks, Ranveer ji. Great, yeah, Thanks wonderful. a lot to you, sir. No, it was really a pleasure, and हम इसे कंटिन्यू रखेंगे. हम कोशिश करेंगे कि और वैल्यू एडिशन हम आपस में जब तक वर्चुअली हो सके वर्चुअली, फिर जैसे किसी ने ग्रुप में, अनंत जी ने शायद ग्रुप में कहा था कि कभी हम मिलेंगे इन पर्सन. रणबीर जी, अगर संडे का सेशन का टाइमिंग चेंज हो सके तो इफ यू कंसीडर दैट, क्योंकि वो 10 से 12 है मेरा कंटिन्यूएशन में एवरी संडे. मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं कर पाता, बट मैसेजेस चले गए हैं, तो अब मैं कैसे उनको मतलब. नहीं, ये आप कर लीजिए, दिस वन नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट में मैं पूछ लूंगा. नेक्स्ट में वी कैन, अगर सर्वसम्मति रहेगी और सभी को अगर ऐसा रहेगा कि टाइमिंग सूटेबल रहेगा तो हम वो कर लेंगे. या श्योर. नाउ नॉट दिस वन लेट इट गो लाइक दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट. ठीक है, तो आई होप दिस ट्रेनिंग इज माय 52 वीक्स total. The whole year is there. Okay, fine, no problem. So what I'll do, we'll meet tomorrow, and then we'll see how we'll take things further. So next Saturday के लिए Mr. Chetan. Yeah. Right? Okay. So thank you all. Thank you very much, and we'll keep connected. See you tomorrow. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot. Thanks.